I welcome you all in my channel Decode the Law, and topic for today that what is the difference between section 34 and 149 of the Indian Penal Code. So section 34 enumerates the provisions relating to common intention and section 149 enumerates the provisions relating to common object. So what is the difference between these two and what is the expected question that can come in your judiciary examination and law examination as well, I am going to discuss in detail in this video. Presently अगर आप कोई law student हो और judiciary student हो then this video is very much important for you. And अगर आप law student हो then prepare this question beforehand ताकि जब आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन लेने जाओ तो ये क्वेश्चन आपका पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेगा. लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. So, in order to understand the provision that has been mentioned in section 34 of the Indian Penal Code, we have to first understand what is the doctrine of combination. So, doctrine of combination क्या है? So, according to this doctrine, when a crime is committed by a group in furtherance of the common intention or in prosecution of common object, each member of such group will be liable for that in the same manner as if it were done by him alone. मतलब जहाँ पर एक क्रिमिनल एक्ट ग्रुप में परफॉर्म किया जा रहा है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ईच एंड एवरी पर्सन जो मतलब एक्ट को अंजाम दिया है उन लोगों को सेम तरीके से लायबल किया जाएगा in order to give punishment of such act. Now, let's understand what are the essential ingredients or essential elements of section 34. So, number one is that a criminal act must be done by several persons. So, several person ये जो word use किया गया है बेयर एक्ट में इसका मतलब क्या है? So, basically ये बोल रहा है criminal act by several person, that is the expression criminal act includes within its ambit any word, gesture, deed or conduct of any kind on the part of any one of them, active or passive, which tends to support the common design of committing a crime. मतलब जहाँ पर criminal act perform किया जा रहा है by any word, gesture, deed, conduct, ये जो सारा मतलब चीज़ बताया गया है एंड ये एक्टिव भी हो सकता है एंड पैसिव भी हो सकता है इन एनी हाउ जो कमिट किया जा रहा है एंड वहाँ पर एक कॉमन डिज़ाइन मतलब एक प्लान किया गया है अकॉर्डिंग टू दैट ये सारा मतलब काम किया जा रहा है. वहाँ पर बोला जाएगा दैट एक क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म हो रहा है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन बाय सेवरल पर्सन का मतलब है एक से ज़्यादा इंसान. ये जाहिर सी बात है कॉमन इंटेंशन होने के लिए एक से ज़्यादा इंसान होना चाहिए. So, now let's understand an eminent case law regarding to this point. So, that is Borendra Kumar Ghosh versus King Emperor, and this case is also known as Shakhari Tola Post Office Murder Case. ये जो केस है प्रीवी काउंसिल ने बताया था फॉर द फर्स्ट टाइम जहाँ पर कॉमन इंटेंशन है वहाँ पर कौन ओवरटैक्ट किया है और कौन नहीं किया है ये मायने नहीं रखता है. So what was happened in that case? Let's understand the fact in a brief manner that in this case several persons appeared at the door of the room where the postmaster was counting the money. So postmaster money count कर रहे थे and जो room में money count कर रहे थे उस दरवाजे पे several person appeared हुए थे and they demanded the money. वो लोग money demand कर रहे थे. Immediately thereafter they fired at him. वो लोग क्या करते हैं वो लोग फायर कर देते हैं killing the postmaster and thereupon ran away without taking the money. वो पोस्टमास्टर को मार के पैसा लिए बिना ही भाग जाते हैं. बोरेंद्र कुमार was however caught with a pistol in his hand and was handed over to the police officer. जो बोरेंद्र कुमार थे उनको पकड़ा गया था पिस्तौल के साथ एंड उनको हैंड ओवर किया गया था टू द पुलिस. And the accused was tried under section 34 read with 302 IPC, and according to prosecution he was one of the three men who fired at the postmaster. According to prosecution बोरेंद्र कुमार जो तीन लोग आए थे पैसा लूटने के लिए उनमें से एक इंसान है बोरेंद्र कुमार, ठीक है, एंड वही तीन लोगों ने फायर किए थे. The accused denied this charge on the ground that he was simply standing outside and had not fired at the deceased. एक्यूज ने बोला था दैट आई वॉज सिंपली स्टैंडिंग आउटसाइड, मतलब मैं दरवाजे के बाहर सिंपली खड़ा हुआ था
It was in fact established that he really did not fire any shot from his pistol. मतलब जो उनके पास पिस्टल थे ये प्रूव हो गया था दैट वो कोई फायर नहीं किए थे. He was also pleaded that he was compelled to stand on guard duty and had no intention to commit the murder of the postmaster. That उनको बोला गया था सिर्फ गार्ड की तरह दरवाजे में खड़े रहने के लिए एंड उनका कोई इंटेंशन नहीं था टू कमिट द मर्डर ऑफ द पोस्टमास्टर. एंड दिस प्ली वॉज रिजेक्टेड बाय द प्रीवी काउंसिल. प्रीवी काउंसिल इस प्ली को रिजेक्ट कर दिए थे एंड even if the appellant did nothing as he stood outside. And it is to be remembered that in crimes as in other acts similar or diverse by several persons, if all are done in furtherance of common intention, each person is liable for the result of them as if he had done himself. मतलब प्रीवी काउंसिल ये बोला था दैट हो सकता है जो एपिलेंट थे वो सिर्फ खड़े हुए थे आउटसाइड द डोर, बट यहाँ पर ये मान लिया जाएगा दैट जो एक्ट परफॉर्म किया गया है वो सेवरल पर्सन से द्वारा किया गया है एंड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन परफॉर्म किया गया है. सो जो सारा इंसान इस क्राइम से जुड़े हुए हैं उनको सेम तरीके से लाइबल किया जाएगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कौन गोली चलाया है, कौन सिर्फ बाहर खड़े हुए थे, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है बिकॉज वहाँ पर कॉमन इंटेंशन एंड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन काम किया गया था. Okay, and here the Barendra Kumar was liable. Now the another essential ingredient is that the criminal act must be done in furtherance of the common intention of all. मतलब जो इंसान प्रेजेंट थे हर एक का कॉमन इंटेंशन का एक्सटेंशन हुआ है एंड उसके बाद ही वो क्राइम परफॉर्म किया गया है, ऐसा सिचुएशन अराइज होना पड़ेगा. They must have a common intention to commit the crime. The common intention means a prior meeting of minds or preconceived design or a plan. मतलब common intention मतलब एक prior meeting of minds और preconceived design और plan. मतलब पहले से ही एक प्लान मौजूद था, एक मतलब premeditated से ही एक प्लान मौजूद था in order to commit the crime. ओके, एंड जो सारा इंसान उस प्लान में शामिल थे उन लोगों को एक तरीके से लाइबल किया जाएगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट कौन किस रोल मतलब क्राइम करने के लिए कौन सा इंसान कौन सा एक्ट परफॉर्म किया है ये मायने नहीं रखता है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एन एडिशनल पॉइंट दैट द टर्म कॉमन इंटेंशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ सिमिलर और सेम इंटेंशन. सो व्हाट इज सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन? We will distinguish between these two in the later part. Okay, now let's understand what is the another essential ingredient, that is there must be participation of all person in furthering of common intention. इसका मतलब क्या है? So इसका मतलब है an important limb for the operation of the principle of joint criminal liability is necessity of participation in the criminal act by all those who are charged with the offense. Participation of everyone in the group in criminal act is the dominant feature of the provision of section 34. मतलब जो प्रोविजन 34 में बताया गया है उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक डोमिनेंट फीचर होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. वो क्या है? वो है इन फर्दरिंग ऑफ द कॉमन इंटेंशन वो क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किया जाना चाहिए. मतलब जो प्री कंसिप्ट प्लान था और कॉमन डिज़ाइन था उसको एक्सटेंड करते हुए ऑल द पर्सन मतलब जो ग्रुप मतलब जो इंसान उस प्लान में शामिल थे उन लोगों ने अंजाम दिया है वो क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए. ऐसा सिचुएशन अराइज होना पड़ेगा तभी सेक्शन 34 को अप्लाई किया जाएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट विद द इलस्ट्रेशन. सपोज ए एंड बी commit the murder of C but there were no pre-arranged plan between them in this regard. Suppose A and B इन दोनों का सेम इंटेंशन है टू कमिट द मर्डर ऑफ C. ओके, एंड यहाँ पर कोई प्री अरेंज्ड प्लान और कॉमन इंटेंशन नहीं है बिटवीन A एंड B. मतलब इन दोनों में कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ है. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है. सपोज आपको जुडिशरी एग्जाम में भी ऐसा पूछा जा सकता है कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में दैट कैन A एंड B बी कन्विक्टेड फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302 रीड विथ 34 IPC. मतलब जहाँ पर कोई कॉमन इंटेंशन इन दोनों में नहीं है C को मर्डर करने का बट दोनों का इंटेंशन सेम है दैट टू कमिट मर्डर ऑफ C. क्या वहाँ पर दोनों को एक साथ लाइबल किया जा सकता है? द सुप्रीम कोर्ट आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन द केस ऑफ पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955. ये जो केस है यहाँ पर बोला था
दैट दे विल नॉट बी लायबल एज द सेम मैनर, बिकॉज यहाँ पर सिमिलर इंटेंशन हुआ है, मतलब दोनों का इंटेंशन सेम है टू कमिट द मर्डर ऑफ सी, बट दोनों में कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है दैट एक साथ हम लोग सी को मर्डर करेंगे। मतलब ऐसा कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ था बिटवीन ए एंड बी, बट दोनों का इंटेंशन सेम ही था दैट टू कमिट मर्डर ऑफ सी। सो ये जो एग्जाम्पल है दैट आई हैव टोल्ड यू दैट द टर्म कॉमन इंटेंशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ सिमिलर इंटेंशन और सेम इंटेंशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द थिंग दैट इन दोनों में सेम इंटेंशन हुआ है और सिमिलर इंटेंशन हुआ है, कोई कॉमन इंटेंशन और दैट इज द मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ है। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ये केस में एक रीज़न दिया था दैट इन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 IPC देयर मस्ट बी अ प्री अरेंज्ड प्लान दैट इज प्रायर कंसर्ट और मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन द ऑफेंडर्स। मतलब जो ऑफेंडर्स एक क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए जा रहा है उन दोनों में एक मीटिंग ऑफ माइंड्स, एक प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए। So in the present case, A and B jointly committed murder of C, yet they had not meeting. So ये जो present case है यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दोनों में एक ही intention है that to commit the murder of C, but A and B ने इन कोई meeting of minds मतलब पहले से कोई plan करके नहीं रखा था। Okay, ऐसा कोई meeting of minds और pre arranged plan इन दोनों में नहीं था। सो दैट्स वाई इन दोनों को सेक्शन 302 रीड विथ 34 में कन्विक्शन नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक इंडिपेंडेंट चार्ज दैट इज ए के लिए इंडिपेंडेंट चार्ज अंडर सेक्शन 302 एंड बी के लिए भी इंडिपेंडेंट चार्ज फ्रेम किया जाएगा अंडर सेक्शन 302। सो इंडिविजुअल मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज फ्रेम किया जाएगा ए के लिए एंड बी के लिए। सो दैट्स द प्रोविजन दैट हैज़ बीन मेंशन इन सेक्शन 34। Now let's understand what is common object. So ये था common intention. So common object क्या है? So common object का जो provision है ये बताया गया है under section 149 of the Indian Penal Code. So 149 like section 34 is another instance of constructive joint liability. Constructive joint liability मतलब जहाँ पर एक काम परफॉर्म किया जा रहा है by several persons, मतलब एक से ज़्यादा इंसान है, वहाँ पर वो लोगों को लाइबल किया जाएगा अंडर कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लाइबिलिटी। ओके, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन वी हैव टू कास्ट आवर ग्लांस एट सेक्शन 149। सो सेक्शन 149 का हेडिंग है दैट एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। मतलब जहाँ पर एक काम किया जा रहा है बाय एन अनलॉफुल असेंबली उन लोगों को गिल्टी माना जाएगा दैट वहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट था एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट उन लोगों को लाइबल किया जाएगा। सो व्हाट डू मीन बाय अनलॉफुल असेंबली एंड व्हाट डू मीन बाय कॉमन ऑब्जेक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन अ डीपर वे। सो व्हाट इज इट? इन ऑर्डर टू अप्लाई सेक्शन 149 देयर मस्ट बी एन अनलॉफुल असेंबली। सो 149 को अप्लाई करने के लिए एक अनलॉफुल असेंबली होना पड़ेगा। सो अनलॉफुल असेंबली क्या है? सो अनलॉफुल असेंबली जो है उसका डेफिनेशन सेक्शन 141 में बताया गया है। सो सेक्शन 141 बोल रहा है एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इज डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल। मतलब जो असेंबली और ग्रुप क्रिएट किया गया है, मतलब जहाँ पर 5 और 5 से ज़्यादा इंसान है उसको बोला जाएगा अनलॉफुल असेंबली। अगर जो सारा कंडीशंस और जो मतलब क्राइटेरिया बताया गया है सेक्शन में, अगर वो सारा कंडीशन ये फुलफिल करता है तो। सो व्हाट आर दिस क्राइटेरिया? सो नंबर 1 इज़ दैट जहाँ पर एक क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। नंबर 2, टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। thirdly to commit mischief और criminal trespass। फोर्थली बाई मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स कुछ कमिट किया जा रहा है, मतलब जिस इंसान का एक लॉफुल राइट बनता है टू एंजॉय सर्टेन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी और वहाँ पर इनकॉर्पोरियल राइट बनता है, उस इंसान को मैं फोर्सफुली क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करके रोक रही हूँ टू एंजॉय सच पोजेशन। फिफ्थली बाई मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स or to show criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or omit to do what he is legally entitled to do। मतलब एक ऐसा काम करने के लिए मैं उसको मतलब बाउंड कर रही हूँ जहाँ पर वो लीगली वो काम करने के लिए बाउंड नहीं है, और टू omit to do what he is legally entitled to do, और जहाँ पर वो काम लीगली करने के लिए एंटाइटल है उस काम को करने के लिए मैं उसको रोक रही हूँ। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो बोला जाएगा दैट पर्टिकुलर ग्रुप
इज एन अनलॉफुल असेंबली। एंड एक्सप्लेनेशन अपेंडेड टू दिस सेक्शन बोल रहा है दैट अनलॉफुल असेंबली नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड, मतलब जब वो ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है, मतलब वो एक जगह में गैदर हो रहे हैं, तब उसको नहीं बोला जाएगा दैट इट इज़ एन अनलॉफुल असेंबली। इट मे सब्सिक्वेंटली बिकम अनलॉफुल असेंबली, मतलब वो ग्रुप ऐसा कुछ काम कर रहा है जो सब्सिक्वेंटली उस ग्रुप को कन्वर्ट कर दे रहा है ऑटोमेटिकली टू एन अनलॉफुल असेंबली। मतलब एक ऐसा काम कर रहा है इटसेल्फ इज़ वेरी मच अनलॉफुल, एंड जो काम करने से एक क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म हो रहा है, मतलब एक ऑफेंस कमिट हो रहा है अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है व्हाट इज़ ऑफेंस। सो ऑफेंस का जो परिभाषा दिया गया है सेक्शन 40 में, अगर इस परव्यू में आ जाता है तो उसको बोला जाएगा अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सेक्शन 49 इज़ ऑल अबाउट। अगर आप बेयर एक्ट को फॉलो करते हो तो यू विल सी that if an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, मतलब जहाँ पर एक काम किया जा रहा है any member, मतलब कोई एक इंसान और member ने commit कर रहा है of an unlawful assembly and जो in prosecution of common object perform किया जा रहा है, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of common object, every person who at the time of committing the offence is a member of the same assembly, मतलब जो काम कमिट किया जा रहा है, कमिट करने के वक्त उन लोगों को पता है that they knew that is likely to be committed in prosecution of the common object, every person, मतलब जो इंसान उस ग्रुप में है वो सभी लोगों को पता है दैट कौन सा काम कमिट करने के लिए वो लोग जा रहे हैं, एंड इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट वो काम करने के लिए वो लोग जा रहे हैं, and who at the time of committing offence is a member of the same assembly is said to be the guilty of such offence, मतलब जो इंसान वो कमिट कर रहे हैं एंड उनको पता है दैट हम लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है एंड वो लोग क्राइम कमिट करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन 49 में उन लोगों को गिल्टी माना जाएगा। ओके, सो सेक्शन 149 इज रीड विथ सेक्शन 141। So now let's understand what are the essential ingredients of section 149. Section 149 को attract करने के लिए 4 ingredients होना बहुत ही important है। Number 1, that there must be an unlawful assembly as defined under section 141. 141 में जो सारा 5 criteria बताया गया है, दैट ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एक्सप्लेनेशन जो बताया गया है इनके परव्यू में आना चाहिए। सेकेंडली, द क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय मेंबर ऑफ सच असेंबली, मतलब जो मेंबर है उस असेंबली का उनके द्वारा क्राइम को कमिट किया जाना चाहिए। एक्ट डन इज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली और सच एक्ट विच इज़ लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको एक्सटेंड करते हुए वो एक्ट को कमिट किया जाना चाहिए। यहीं पर ही आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। सो आज का वीडियो का पर्पस यही है दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फाइन लाइन बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशरी एग्जाम। मैं आपको बताऊंगी केस लॉ के साथ। नाउ द फोर्थ एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज दैट मेंबर मस्ट हैव वॉलंटरली जॉइंड द अनलॉफुल असेंबली एंड न्यू द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली, मतलब जो इंसान उस असेंबली को ज्वाइन कर रहे हैं वो वॉलंटरली ज्वाइन कर रहे हैं एंड उनको पता है इस ग्रुप का फॉर्मेशन पर क्या ऑब्जेक्ट है, और मतलब उनको पता है इस ग्रुप का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों इस ग्रुप को क्रिएट किया गया है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एन एडिशनल पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। सो ये जो टर्म सेक्शन में यूज़ किया गया है दैट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताया गया है इन द केस ऑफ क्वीन वर्सेस साबिद अली। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट केस इन दिस रिगार्ड। ये बोल रहा है दैट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है दैट विथ ए व्यू टू अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको एक्सटेंड करते हुए जो क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है उसको ही बोला जाएगा इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं दैट सपोज 5 पर्सन्स है, उन लोगों ने एक चाय के अड्डे पर प्लान बनाया है दैट ये जो जेड है एक ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनता जा रहा है इन अ पर्टिकुलर एरिया,
एंड ये जो 5% है इनके अंदर एक एप्रीहेंशन बन रहा है दैट अगर इसको रोका नहीं जाए, जो अगला इलेक्शन आ रहा है वहाँ पर जेड जीत जाएगा, ठीक है, मतलब जेड विजयी हो जाएगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो 5 इंसान थे ये लोग सोचे दैट जेड के घर में आग लगा दिया जाए ताकि उसका मतलब जो इन्फ्लुएंशियल कुछ पावर वगैरह बन रहा है वो एकदम डिम हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। सो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जेड के घर में जाके आग लगा देते हैं। सपोज़ इनमें से एक इंसान थे, सपोज़ सी, ये अपने हाथों से इसका घर में, जेड का घर में आग लगाया है। यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है इन ऑर्डर टू पनिश दोज 5% दैट कौन आग लगाया है, बिकॉज यहाँ पर जो काम किया जा रहा है इन फर्दरेंस और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। मतलब ये जो 5 इंसान है इन लोगों का सेम ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो 5 इंसान है इन लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट यही है दैट टू ब्रिंग द हाउस ऑफ द जेड इनटू फायर, जेड के घर में आग लगा देना। ओके, सो जेड के घर में कौन आग लगा रहा है ये मायने नहीं रखता है, जहाँ पर एक काम किया जा रहा है बाय अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। सो जहाँ पर एक मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहा है, हर एक इंसान को सेम तरीके से लायबल करार दिया जाएगा एंड सेम तरीके से पनिशमेंट भी दिया जाएगा एज इफ़ वो लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन था वो एक्ट को कमिट करने के लिए। I hope you have understand what is the main thing that has been stated in section 149. Now let's understand another important case law, that is Ram Bilas Singh versus State of Bihar. So in case of Ram Bilas Singh versus State of Bihar क्या हुआ था, that Supreme Court identified a situation of an unlawful assembly even where less than 5 are convicted. मतलब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा सिचुएशन आइडेंटिफाई किया था जहाँ पर 5 से कम इंसान थे। सो सेक्शन 141 क्या बोल रहा है, दैट इन ऑर्डर टू फॉर्म एन अनलॉफुल असेंबली 5 और मोर पर्सन होना ही पड़ेगा, राइट। सो बट सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सिचुएशन मतलब आइडेंटिफाई किए थे इन द केस ऑफ राम बिलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दैट वहाँ पर 5 से कम इंसान थे एंड वहाँ पर उन लोगों को कन्विक्शन दिया गया था। सो व्हाट आर द थिंग और चेक लिस्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 149 जहाँ पर 5 से कम इंसान हैं। Number 1 is that the charge state that apart from the person named, several other unidentified persons were also member of the unlawful assembly and it is in the fact established by the evidence। जहाँ पर एविडेंस मिल रहा है that एक एक्ट को कमिट किया गया है एंड वहाँ पर 5 से ज़्यादा इंसान थे बट वो लोग अनआइडेंटिफाइड है। एविडेंस ये इस्टेब्लिश कर रहा है दैट इस एक्ट को कमिट करने के लिए 5 और 5 से ज़्यादा ही इंसान डेफिनेटली रहना पड़ेगा एंड एविडेंस से ये प्रमाण हो जा रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन इफ़ देयर आर लेस देन 5% जो लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। नंबर 2 इज़ दैट even if the charge does not state so FIR and the evidence on record show that such to be the case। मतलब सपोज जहाँ पर FIR में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है बट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जो है वहाँ पर क्लियरली ये अपीयर हो रहा है दैट 5 से ज़्यादा इंसान ने ही इसको कमिट किया गया है, लेस देन 5 इंसान के द्वारा ये एक्ट कमिट किया जाना पॉसिबल नहीं है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को कन्विक्शन दिया जा सकता है। सो मेन प्राइम फैक्ट इज़ दैट एविडेंस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा दैट पार्टिसिपेशन इन द अनलॉफुल असेंबली ऑफ अदर्स। मतलब एविडेंस से ये जाहिर हो रहा है दैट अनलॉफुल असेंबली जो बना है उनमें 5 से ज़्यादा इंसान थे एंड जो एक्ट कमिट किया है वहाँ पर भी 5 से ज़्यादा इंसान थे बट उनमें से कुछ इंसान को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट जिनको आइडेंटिफाई किया गया है उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। Now let's understand what is the distinction between common intention and common object. This is very much important to understand. I would like to mention a case law that is नानक चंद versus State of Punjab। ये जो नानक चंद versus State of Punjab का जो केस था 1955 का, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो थे बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 को बताए थे। So first and foremost thing is that there is a clear distinction between the provision of section 134 and 149 IPC and two sections are not
टू बी कन्फ्यूज्ड। एंड ये दोनों सेक्शन का जो डिस्टिंक्शन है इनमें कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। द प्रिंसिपल एलिमेंट इन सेक्शन 34 IPC इज द कॉमन इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन यहाँ पर क्राइम किया जा रहा है। ओके, एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन रिजल्टिंग इन कमीशन ऑफ दैट क्राइम। जो एक्ट कमिट किया जा रहा है वो कमिट कर रहा है सेवरल पर्सन से द्वारा, मतलब एक से ज़्यादा इंसान कर रहा है। इन कमीशन ऑफ द क्राइम मतलब इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन वो एक्ट रिजल्ट हो रहा है। 34 प्रोवाइड्स दैट ईच ऑफ देम वुड बी लायबल फॉर दैट क्राइम इन द सेम मैनर एज इफ ऑल द एक्ट्स रिजल्टिंग इन दैट क्राइम हैड बीन डन बाय हिम अलोन। मतलब हर एक इंसान को ऐसे ही लायबल किया जाएगा जैसे कि ईच एंड एवरी इंसान जो थे उनका सेम पार्टिसिपेशन है उस एक्ट में। ठीक है, सो इन केस ऑफ 149 पर क्या है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट है मतलब ग्रुप जब फॉर्म हो रहा है तब उसको अनलॉफुल बताया नहीं जाता है, सब्सिक्वेंटली वो अनलॉफुल में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब जब वो ग्रुप कोई अनलॉफुल काम कमिट कर रहा है सब्सिक्वेंटली वो ग्रुप अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक्सप्लेनेशन अपेंडेड टू सेक्शन 149 यही बताता है। ओके, नाउ अनदर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज दैट ओवर्ट एक्ट। सो इन सेक्शन 34 ओवर्ट एक्ट इज़ नॉट नेसेसरी, वहाँ पर ओवर्ट एक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक बोरेंद्र कुमार घोष केस दैट इज शाकारीतोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस, वहाँ पर कोई ओवर्ट एक्ट नहीं था, इन स्पाइट ऑफ दैट उनको लाइबल किया गया था। सो ओवर्ट एक्ट हो या ना हो सेक्शन 34 अट्रैक्ट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सेक्शन 149 कमीशन ऑफ एन ओवर्ट एक्ट इज़ नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ सेक्शन 149, बट अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर है उनके तरफ से एक पार्टिसिपेशन रहना पड़ेगा, मतलब दे ऑल मस्ट हैव बीन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। अनदर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज दैट इन केस ऑफ सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन है वो जस्टिफाई कर रहा है इन ऑर्डर टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम। ओके, जो क्राइम कमिट किया जा रहा है बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, जो कॉमन इंटेंशन है उस एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है। बट दिस इज़ नॉट इन केस ऑफ सेक्शन 149। जो इंसान एक पार्टिसिपेंट्स है एक क्राइम का एंड दैट पर्सन इज़ द मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, दिस इज सफिशिएंट टू रॉब दैट पर्टिकुलर पर्सन अंडर द purview ऑफ सेक्शन 149. Okay, so I hope that you have got the clear concept of that particular thing. If you have any kind of doubt, then you can DM me on the Instagram, and if you have any kind of suggestion, please let me know. Like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel. And I will see you on the other side. Till then, stay happy, stay blessed. Thank you so much for watching this video.